Hello and welcome to the problem solving batch of ISRO 2023 Mechanical Engineering by SN Gate Academy. So students, we were dealing with the subject of thermodynamics और जो टॉपिक हम डील कर रहे थे that was work and heat as well as the first law of thermodynamics. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उसमें के देखे थे और भी क्वेश्चंस हैं इसमें के जो इसरो में आए हुए हैं PYQs इसरो के और उसके अलावा भी जो दूसरी एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे. So without wasting time, let us start this particular session. Before starting, I would like to introduce one revolutionary feature by SN Gate Academy, which is MacGPT. Now, in very short, I will tell you about this MacGPT. You can download our application Gate Lectures for Mechanical from Play Store, and there you will get this particular feature. Now, what you get in this particular feature is you will get a collection of 25,000 plus questions, topic wise, chapter wise questions उसमें arranged है, and that although and the questions include the PYQs of GATE exam, IAS exam, SSC, ISRO, DRDO, सिविल सर्विसेज, PSC जितनी भी एग्जामिनेशंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हुई है वो सारी एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाएंगे. Apart from that, you will get video solutions, you will get the performance analysis, 150 plus online tests, including the test of all major examinations, whether it be GATE, whether it be IES, whether it be ISRO, BARC, DRDO, जितनी भी PSU की एग्जाम्स होती है, गेट की एग्जाम होती है, सबके आपको टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आपको मिलेगी. यू कैन एक्सेस इट ऑन लैपटॉप एज वेल एज ऑन मोबाइल एंड यू गेट द कंप्लीट performance analysis and you can continuously improve your performance from that. And this actually is the step towards the AI based learning कि आपके जो भी उसमें कमियां हैं, आपकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको वो एप्लीकेशन दूर करता है. सो जस्ट ट्राई दिस एप्लीकेशन, डाउनलोड द एप्लीकेशन गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल फ्रॉम प्ले स्टोर और उसी एप्लीकेशन से ही आज हम क्वेश्चंस इसमें के सॉल्व करने वाले हैं. आई होप दिस इज क्लियर. यस, सो स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. A volumetric air content of a tire at 27 degrees centigrade and at 2 bar is 30 liter. If one morning the temperature dips to minus 3 degrees centigrade, then the air pressure of the tire would be. क्या बोल रहा है? The volumetric air content of the tire, initial temperature of the tire T1 is given. T1, initial temperature of the tire T1 is given as 27 degrees centigrade or you can say 300 Kelvin. Okay, initial pressure is also given, which is 2 bar. T1 is given as 2 bar. Okay, and volume is given as 30 liter. Now the very first thing should be you must convert this liter to meter cube. Okay, so 30 liter, 1 liter मतलब कितना होता है? 1 meter cube is equal to 1000 liter. So 30 liter is equal to 30 into 10 to the power minus 3 meter cube. ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस कन्वर्जन. 1 meter cube is equal to 1000 liter. Getting this? Okay, so 30 liters is 30 into 10 to the power minus 3 meter cube. Getting this? Now आगे क्या बोल रहा है? If one morning the temperature dips to minus 3 degree centigrade. ठीक है, temperature dips to, वो टायर कहाँ गया है? एक one fine morning the temperature of the tire is now minus 3 degrees centigrade. The temperature is minus 3 degrees centigrade. Then the air pressure in the tire would be, what would be the pressure? This we have to determine. I hope this is clear. Yes, ठीक है. Now simple चीज है. Obviously the volume which is how much? 30 liter is constant. The volume is constant. Okay, the temperature is changing and उसके corresponding हमको pressure की value निकालनी है. Clear? ठीक है, कैसे कर सकते हैं? Simply just put the formula P1 V1 is equal to MRT1, P2 V2 is equal to MRT2. Yes, ठीक है. When you divide this, volume same है, volume will be cancelled, mass will be cancelled, R will be cancelled. You will get what? P1 by P2 is equal to T1 by T2. That's it. Okay, just put the values. P1 कितना है? P1 is given as 2 bar. P2 we have to determine. P1 is how much? This is 2 bar upon P2. Okay, and T1 is how much? T1 is 300 Kelvin. And what is T2? Minus 3 degree centigrade. Minus 3 degree centigrade means in terms of Kelvin, this is 273 minus 3. 273 minus 3 is 270 Kelvin. Okay, so T2 is given as 270 Kelvin. T1 is 300 Kelvin. T2 is 270 Kelvin. So this will be T1 is 300. T1 is 300, T2 is 270. Okay, so from here you can determine the value of this P2, which is 270
into 2 divided by 300. Okay, so from here this P2, just calculate this. 270 into 2 is 540, divided by 300 is approximately 1.8 bar. Okay, so the pressure next day would be how much? That will be 1.8 bar. Okay, so answer should be A, 1.8 bar. I hope this is clear. Yes, ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्या बोल रहा है? assertion given Cp for a gas is always greater than Cv. ठीक है, ये सही है बिल्कुल. Cp is always greater than Cv. Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होती है. So assertion is correct, बिल्कुल सही है. रीजन क्या बोल रहा है? Cp includes work of expansion in addition to the kinetic energy. The reason is also correct. Cp में बेसिकली रहता क्या है? Specific heat at constant pressure. Let's suppose I'm having a piston cylinder arrangement and I'm heating this. The particular gas which I am having, I am heating this. Okay, so this is nothing but the heat which is supplied is nothing but the specific heat at constant pressure. Why? Because the pressure remains constant. Okay, तो यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं that is at constant pressure. जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं that is at constant pressure. Okay, तो ऐसी तो 1 kg ऑफ गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट लगेगी that will be called as specific heat at constant pressure. Yes, similarly constant वॉल्यूम में अगर मैं हीट करता हूँ तो let's suppose I am having a vessel of constant volume और इसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो अब जो हीट लगेगी फॉर हीटिंग 1 kg ऑफ गैस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड that will be Cv, which is specific heat at constant volume. Now what happens is whatever heat I am supplying, constant pressure में मैं जब सप्लाई कर रहा हूँ, some amount of this particular heat will be utilized in doing certain work, है ना. कुछ अमाउंट क्या कर रहा है? इसका वर्क में जा रहा है और रिमेनिंग अमाउंट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है. और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पूरा का पूरा जो हीट है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है. इज दिस क्लियर? यस, तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस में आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट जो है वो ज्यादा लगेगी. इज दिस क्लियर और नॉट? इसमें एज कंपेयर टू दिस, इसमें आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट की वैल्यू ज्यादा लगेगी, यानी कि Cp की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Cv, क्योंकि कुछ अमाउंट उसका वर्क में यूटिलाइज हो रहा है. ओके, सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. So answer should be A. Is this clear? Yes, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? 2 heat engine cycles 1 2 3 1 and 1 dash 2 dash 3 dash 1 dash are shown in TS coordinate in figure. On PV coordinate this cycle would be represented as. TS diagram हमको given है. We want to draw the PV diagram. Okay, PV diagram इसका किस तरह से बनेगा? That we have to determine. Okay, now how would be the PV diagram? कैसा होगा बताओ? Just forget about the options. Forget about the options. क्या क्या चीज बोल रही है हम अपने हिसाब से बना लेते PV डायग्राम. प्रोसेस 1 2 देखो, सबसे पहले हम प्रोसेस आते हैं 1 2 इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. कांस्टेंट टेम्परेचर इज नथिंग बट एन आइसोथर्मल प्रोसेस. यस, ओके. तो PV डायग्राम में सबसे पहला तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस बना लो. दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. देन 2 2 3 देखो कौन सी प्रोसेस है. दिस 2 2 3 दो प्रोसेस यहां पर दिख रही है आपको. एक तो 2 3 है, दूसरी है 2 डैश 3 डैश. गेटिंग दिस? क्लियर? ओके. नाउ टीएस डायग्राम में आपने टीएस डायग्राम देखा है, तो टीएस डायग्राम में एक चीज हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर कर्व. कांस्टेंट प्रेशर कर्व का स्लोप कम रहता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप इन अ टीएस डायग्राम. ठीक है. तो यहाँ जो दो प्रोसेसेस आपको दिख रही है, ध्यान दो इधर, विच इज एक तो होगी आपकी 2 3, दूसरी होगी आपकी 2 डैश 3 डैश. ठीक है. तो 2 3 का स्लोप आपको ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू 2 डैश 3 डैश. यस और नो? ठीक है. तो 2 3 जो प्रोसेस है, दैट 2 3 प्रोसेस इज एक्चुअली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम होगी. और 2 डैश 3 डैश जो होगी दैट विल बी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. यस, ठीक है. तो 1 2 तो आपकी सेम थी, 1 2 एंड 1 डैश 2 डैश. दिस इज 1 2 और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 1 डैश 2 डैश. ये तो आपकी सेम है. ठीक है. 2 से 3 कौन सी प्रोसेस है? दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपकी कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन.
यस, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस 2 डैश 3 डैश? अच्छा, पहले 2 3 के बाद 3 1 देख लेते हैं। 3 1 कैसी प्रोसेस है? 3 1 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और यू कैन से एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो आइसेंट्रोपिक का, एडियाबैटिक का आपका जो स्लोप रहता है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो ये आपका 1 2 आइसोथर्मल था, 2 3 जो है डेट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, और 3 1 जो हो गया डेट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इज दिस क्लियर? यस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 2 डैश 3 डैश पे। ठीक, अब इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखो 1 2 एक्सटेंड होते हुए, ये 1 1 डैश 2 एक्सटेंड होते हुए कहाँ तक जा रहा है? अप टू 2 डैश। ओके, तो ये वाला जो कर्व है ये एक्सटेंड होते हुए कहाँ तक आएगा? अप टू 2 डैश, अप टू लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2 डैश, ये 2 डैश तक आया। ठीक है, देन 2 डैश टू 3 डैश इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एज आई टोल्ड यू। तो 2 डैश टू 3 डैश इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। इज दिस क्लियर? यस, ओके। ये थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, सो दिस शुड बी अवर पीवी डायग्राम। सो दिस इज हाउ यू मस्ट डिटरमाइन। तो देख लो, ऑप्शंस मैच कर लो। सो आई थिंक द आंसर इज सी। ठीक है, 1 टू 2, देन 2 टू 2 डैश आपका ये कंटिन्यूशन में जा रहा है, 2 डैश टू 3 इज कांस्टेंट प्रेशर, एंड देन 3 डैश टू 1। इज क्लियर नॉट? ओके, सो आंसर शुड बी सी। ओके, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैथमेटिकल कंडीशंस एट अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस वुड बी। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पर आपको फेस चेंज का जो रीजन है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। दैट मीन्स यहाँ से आपकी लिक्विड आ रही है, दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर। ओके, तो ये जो आपका वेट रीजन था लिक्विड प्लस वेपर वाला, ये दिस बिकम जीरो। गेटिंग दिस? ओके, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट में आपका स्लोप जो है वो चेंज होता है, और स्लोप क्योंकि चेंज होता है तो ऑब्वियसली आपका जो डेल पी बाय डेल वी जो होता है, दिस डेल पी बाय डेल वी इज इक्वल टू जीरो। ओके, दैट मीन्स स्लोप इज जीरो, कर्वेचर भी जीरो होता है। इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं, डेल टू पी बाय डेल वी स्क्वायर, दिस इज अगेन जीरो। ओके, बट इसको मैं ट्रिपल डिफरेंशिएट करूं, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, डेल थ्री पी बाय not del dou 3p by dou v cube, this should actually be less than 0। ये जो होगा आपका this will be less than 0। okay, so answer should be C, dou p by dou v is 0, dou 2p by dou v square is 0, and dou 3p by dou v cube is less than 0। okay, so this is the feature, this is the property of the critical point। is this clear? yes, ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? An ideal gas contained in a rigid tank is cooled such that T2 less than T1। Okay, T2 is less than T1 and P2 is less than P1। Okay, in the given TS diagram, temperature entropy diagram, this process is represented by the line labeled। Okay, an ideal gas is cooled, ideal gas cool हो रही है, that means heat reject हो रही है। हीट जब भी रिजेक्ट होगी आपकी एंट्रोपी जो है दैट विल ऑलवेज डिक्रीज। हीट जब भी रिजेक्ट होगी एंट्रोपी विल डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पर आपको एक ही प्रोसेस ऐसी दिख रही है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, बाकी सारी प्रोसेस देखो, दे वाली प्रोसेस देखो, डी में क्या हो रही है? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सी में भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। बी में आपकी एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ओके, सो देयर इज ओनली वन प्रोसेस इन विच द एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेनेवर देयर इज अ कूलिंग प्रोसेस, व्हेनेवर हीट इज ट्रांसफर्ड from the system to the surrounding, the entropy of the system decreases। okay, so there is only one option which matches this particular condition, that the entropy is decreasing, and that is option A। is it clear? okay, so answer should be A। clear नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ो। now the next question, an interesting question। what does this question says? just read this question carefully। when a can of compressed air is punctured, when a can of compressed air is punctured, air blows out to the right and the can will move from right to left। okay, so we are having one can, okay, which is having compressed air। inside this particular can the air is compressed, मतलब high pressure में हमारे पास air है यहाँ पर। getting this? ठीक है, let's suppose this pressure is P1, outside pressure is P2 such that P1 greater than P2। ठीक है, now इस particular can को पंक्चर किया जा रहा है, और पंक्चर कैसे किया जा रहा है? सो दैट एयर ब्लोज आउट टू द राइट। एयर कहां की तरफ जाएगी? राइट की तरफ जाना चाहिए, इस तरह से इसको पंक्चर करना है। तो पंक्चर कहां होगा? ये यहां होगा। देन द एयर विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
सॉरी, एयर विल मूव टुवर्ड्स राइट, एयर विल मूव टुवर्ड्स राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ एयर जा रही है, तो देन व्हाट विल हैपन, एंड द कैन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, as a result this can will move in the opposite direction. This was a compressed air. तो compressed air जब आपका जेट का आप फंडा जानते होंगे, ओके, तो जेट इस डायरेक्शन में जाता है, तो आपका जो ये है जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अपने जेट स्की वगैरह भी देखा होगा, या जेट प्लेन्स जो यूज करते हैं वो भी सेम कंसेप्ट में काम करती है। तो आपकी एयर, कंप्रेस्ड एयर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका जो कैन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। गेटिंग दिस, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, व्हेन अ वैक्यूम कैन इज पंक्चर्ड, है ना। अब मैं ले रहा हूँ एक वैक्यूम कैन, दिस इज अ वैक्यूम कैन, इनसाइड दिस इज वैक्यूम, that means inside pressure is P1, outside pressure is P2. Let's suppose here P1 is less than P2. Okay, now अब इसको पंक्चर किया जा रहा है such that air enters from right to left. Air is entering from right to left, मतलब पंक्चर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, तभी आपकी एयर जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी। ओके, नाउ ये वाला कैन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस यू हैव टू डिटरमाइन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्या बोल रहे हैं, इनिशियली कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर में हमने पंक्चर यहाँ पर किया, एयर इस डायरेक्शन में जा रही है टुवर्ड्स राइट, तो कैन जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। यस, नेक्स्ट हम ले रहे हैं वैक्यूम कैन। वैक्यूम कैन में क्या होगा, पंक्चर हमने यहाँ पर किया, एयर इज रशिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एयर जो है वो कहाँ जा रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपका कैन कहाँ जाएगा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो जब एयर आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द वैक्यूम, आउटसाइड प्रेशर इज मोर देन इनसाइड प्रेशर, तो ये एयर के साथ साथ इसी डायरेक्शन में ही आपका कैन जाएगा। सो कैन विल आल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस द कैन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Answer. Okay, the answer should be B. The can will move from right to left. Is this clear? Yes. All right. So next few questions from CSE, the Civil Services Examination के PYQs हम solve करेंगे from first law of thermodynamics. Okay. Now the very first question says the expression of integration of PdV can be used for obtaining the work of. Okay. Now in the derivation only we have seen integration of PdV. ये हमने डिराइव किया था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, बट दिस वाज कंडीशनल। कौन कौन सी कंडीशंस हमने लगाई थी इसमें, कंडीशन क्या क्या थी, द वेरी फर्स्ट कंडीशन वाज द प्रोसेस शुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहली चीज, ये जो फॉर्मूला है किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए। दूसरा, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस ओनली, फॉर द क्लोज सिस्टम ओनली, फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस। यस, ओके। और एक और कंडीशन थी, when only and only PdV work और displacement work is present। जब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में PdV या फिर उसको आप बोल सकते हैं displacement work is present। okay, so all these conditions has to satisfy when we want to apply this particular equation W is equal to integration of PdV। okay, so according to options this particular W is equal to integration of PdV should be can be obtained, can be applied for non-flow process, non-flow reversible process. Answer should be C। okay, the process should be non-flow process and it should be the reversible process। yes, एक और कंडीशन रहती है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, बट वन मोर कंडीशन देयर दैट ओनली पीडीवी वर्क इज प्रेजेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट वर्क, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिकल वर्क रहे या साथ में पैडल व्हील वर्क रहे, तो अलग अलग तरह के वर्क होते हैं, तो इसमें हम एज्यूम करते हैं दैट ओनली पीडीवी वर्क इज देयर। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अब क्या बोल रहे हैं, फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, for a reversible adiabatic compression in a steady flow process the work transfer per unit mass is, in a steady flow process for open system the work transfer per unit mass for open system steady flow process के लिए क्या होता है, this is nothing but integration of VdP, है ना। क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ओपन सिस्टम या स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो हैविंग सर्टेन कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या रहती है इसमें कि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस शुड बी निग्लेक्टेड, ये जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट द प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक, दैट मींस नो हीट शुड बी ट्रांसफर्ड। तो ये तीन चार कंडीशन के साथ ही हमको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलता है। However, conditions are not mentioned, but according to this particular formula, the answer should be B, integration of VdP। Now you may say कि सर ये integration of VdP बोला है, आपने minus VdP बताया, तो ये जो minus है, this minus sign indicates that the work is done on the system। ये माइनस साइन क्या शो करता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहाँ ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है द वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास इज, ऑलरेडी इसने वर्क ट्रांसफर बोल दिया है कि कितना वर्क ट्रांसफर हो रहा है, तो यू जस्ट हैव टू मेंशन द मैग्नीट्यूड, है ना। तो आप
यहाँ पर आपको साइन से कंसर्न नहीं है, कितना वर्क ट्रांसफर करेंगे तो वीडीपी वर्क ट्रांसफर करेंगे। ये साइन क्या शो कर रहा है, दैट दिस मच वर्क इज ट्रांसफर्ड, तो इसने ऑलरेडी क्योंकि ट्रांसफर बोल दिया है, सो यू नीड नॉट टू मेंशन द माइनस साइन, सो आंसर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी। और ऑब्वियसली अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि माइनस साइन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। गेटिंग दिस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्या बोल रहा है देखो, एन एयर कंप्रेसर कंप्रेसेस एयर विद एन एंथैल्पी ऑफ 100 किलोजूल पर केजी टू अ प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट हैव एन एंथैल्पी ऑफ 200 किलोजूल पर केजी। ओके, क्या बोल रहा है, वी आर हैविंग एन एयर कंप्रेसर, ओके, इनिशियल एंथैल्पी इज गिवन, H1 is given as how much, 100 kilojoule per kg, H1 is 100 kilojoule per kg, ठीक है। This is being compressed to the pressure and temperature which is having the enthalpy of 200 kilojoule per kg. That means final enthalpy is given as 200 kilojoule per kg. Getting this? ठीक है। There is 60 kilojoule per kg of heat lost from the compressor as the air passes through it. 60 kilojoule of heat is lost. That means Q is given as minus 60 kilojoule per kg. This much heat is lost. Okay, this should be minus 60 kilojoule per kg. Yes, neglecting kinetic and potential energy, what is the power required for an air mass flow rate of 1 kg per second? Mass flow rate of air is also given, which is 1 kg per second. So we want to determine the power required. Yes, okay. Now applying steady flow energy equation, this is an air compressor. Applying स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलता है, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस Z1G बाय 1000 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000। ये 2000 क्यों लिख रहे हैं, जस्ट टू बैलेंस द यूनिट, क्योंकि ये किलो जूल में है, ये जूल में आता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, प्लस Z1G बाय 1000 प्लस W, ठीक है, वेयर दिस Q एंड W आर इन किलोजूल पर केजी। गेटिंग दिस? ठीक है। नाउ क्लियर? नाउ बिकॉज काइनेटिक एनर्जी शुड बी निग्लेक्टेड, पोटेंशियल एनर्जी इज निग्लेक्टेड, तो ये आपका जीरो हो गया सब। क्लियर? ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस क्या दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनली फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, दिस विल बी H1 प्लस Q, दिस शुड बी इक्वल टू S2 प्लस W। यस, जस्ट पुट द वैल्यूज, H1 is given as 100, Q is minus 60 and S2 is 200. Okay, so this will be 100, okay, minus 60 is equal to 200 plus W. Clear or not? ठीक है। So from here you will get the value of W, और सारी यूनिट हमारे पास किलोजूल पर केजी में है, so you will get the W in किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी में आपको मिलेगा। So this will be 100 minus 60 is 100 minus 60 is 40, okay, 40 minus 200, so this will be minus 160 किलोजूल पर केजी। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो दिस इज माइनस 160 किलोजूल पर केजी, बट आपको पावर पूछ रहा है, पावर शुड बी इन किलो वॉट। ओके, तो पावर कितना हो जाएगा, ये आपका वर्क मिला है, सो पावर इज व्हाट, पावर इज मास फ्लो रेट इनटू वर्क। ओके, मास फ्लो रेट इज 1 kg per second into minus 160 kilojoule per kg. So this kg gets cancelled out and you will get what, this will be equal to 160. Okay, again 160 सिंपली ये शो कर रहा है दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इससे ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। अल्टीमेटली यू नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी, दिस इज 160 किलो जूल पर सेकेंड या फिर किलो वॉट। ठीक है, गेटिंग दिस नाउ? ओके, सो दिस मच वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दिस मच पावर इज कंज्यूम्ड, सो आंसर शुड बी 160 किलोवाट विच इज बी। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, इसने ऑलरेडी बोल दिया रिक्वायर्ड, मतलब कितना पावर लगेगा, सो यू नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ओनली ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ तक जो माइनस आया था, यहाँ पर भी आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो आपको माइनस आया था दैट वाज जस्ट शोइंग दैट वर्क इज डन ऑन बाय वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इज दिस क्लियर? यस, ठीक है, आगे बढ़े। 160 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखो, वर्क डन between state 1 and 2 in a flow process, work done in a flow process given by which one of the following expression। अभी हमने देखा फ्लो प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन अ फ्लो प्रोसेस इज नथिंग बट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। ओके, आंसर शुड बी ए। ठीक, आगे बढ़ो।
Consider the following statements. During a reversible non-flow process, for the same expansion ratio, work done by the gas diminishes as the value of n in PV to the power n is equal to constant increases. ठीक है, during a reversible non-flow process, just try to understand this particular statement. Reversible non-flow process के लिए क्या बोल रहा है? For the same expansion ratio, अगर हमारा expansion ratio same है, ठीक है, तो n की वैल्यू जैसे जैसे आपकी डिक्रीज होगी, आपका वर्क डन n की वैल्यू जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी, आपका वर्क डन डिक्रीज होगा. Whether this statement is correct or not, this we have to determine. ठीक है, now just try understand this. So PV डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ for different values of n. ठीक है, सबसे पहले मैं बनाता हूँ for n is equal to 1. ठीक, n is equal to 1 के लिए मुझे क्या मिलेगा? I will get one straight line. Sorry, for n is equal to 0, not 1. For n is equal to 0, PV to the power 0 is equal to constant, और you can say P is equal to constant. मतलब एक की constant pressure process आपको मिल रही है for n is equal to 0. Getting this? Clear? ठीक है. Now similarly जैसे जैसे मैं n की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा, now the condition given is the expansion ratio should be same, है ना? The expansion ratio should be same, यानी कि V1 और V2 की वैल्यू जो है वो आपकी फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. Getting this? मतलब ये वाला V1 और V2, ओके, दिस शुड बी फिक्स, इन्हीं के बीच में हमको बनाना है. Now what about n is equal to 1? तो आपको क्या बन जाएगी? आइसोथर्मल प्रोसेस, n is equal to 1. n is equal to 1.4, एडियाबैटिक प्रोसेस, n is equal to 1.4. ठीक है, n की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं, कर्व जो है उसका स्लोप बढ़ते जा रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है. फाइनली व्हेन n is equal to infinite, you will get the straight line, the vertical line, constant volume process. Is this clear? ठीक है. Now अब the area under PV diagram gives work done. Yes, area under PV diagram gives work done. तो अगर आपको वर्क डन देखना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो ये पूरा एरिया आप देखेंगे. यस, अगर आपको इस प्रोसेस का वर्क डन देखना है तो ये वाला एरिया देखेंगे इसके नीचे का. आपको इस प्रोसेस का वर्क डन देखना है तो ये वाला एरिया देखेंगे. इस प्रोसेस का देखना है तो इसके नीचे का एरिया देखेंगे. दैट मींस n की वैल्यू जैसे जैसे आपकी बढ़ते जा रही है, आपका वर्क डन क्या होता जा रहा है? एरिया अंडर द कर्व इज डिक्रीजिंग, सो द वर्क डन इज डिक्रीजिंग. ओके, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट. फिर से पढ़ो स्टेटमेंट को. ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस फॉर द सेम एक्सपेंशन रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हर केस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन रेशियो आपको सेम बोल दिया है, सेम एक्सपेंशन रेशियो है, सो यू कैन इजिली कंक्लूड कि इसके नीचे का जो एरिया है वो कम होते जाए. Getting this? For same expansion ratio, work done by the gas diminishes as the value of n in PV to the power n is equal to constant increases. So this is the correct statement. Work done decrease होते जाएगा जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ेगी. That is the first thing. Second important, second statement क्या बोल रहा है? Adiabatic mixing process is a reversible process. This false. है ना, मिक्सिंग प्रोसेस इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि उसको रिवर्स करने के लिए यू रिक्वायर सर्टेन वर्क. सो एडियाबैटिक मिक्सिंग प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड नॉट द रिवर्सिबल प्रोसेस. दैट मींस ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. आंसर शुड बी ए. 1 ओनली इज करेक्ट. इज इट क्लियर? यस, ठीक है, आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी टू रिप्रेजेंट द वर्क, which of the following condition should apply? है ना, मैंने आपको बताया वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी. ये कब अप्लाई होता है? सबसे पहला, द सिस्टम शुड बी क्लोज सिस्टम, दैट मींस द प्रोसेस शुड बी नॉन फ्लो प्रोसेस. सेकंड कंडीशन, द प्रोसेस शुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस. एंड थर्ड कंडीशन, ओनली एंड ओनली डिस्प्लेसमेंट वर्क शुड बी प्रेजेंट. तब आप लगा सकते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी. ठीक है. नाउ देखो ऑप्शंस देखो. पहला बोल रहा है द सिस्टम इज क्लोज्ड एंड द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन नॉन फ्लो प्रोसेस ओनली. मिल गया आंसर हमको. सेकंड बोल रहा है द प्रोसेस नॉन कोएसिव स्टैटिक, मतलब ये बोल रहा है इरिवर्सिबल. नॉन कोएसिव स्टैटिक मींस इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है. यस. तीसरा बोल रहा है द बाउंड्री ऑफ सिस्टम शुड नॉट मूव इन ऑर्डर दैट वर्क शुड बी ट्रांसफर. द बाउंड्री शुड बी मूव, क्योंकि हमने नाम इसको दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्क. डिस्प्लेसमेंट वर्क मतलब आपका बाउंड्री जो है वो डिस्प्लेस हो रही है, तभी इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क बोलते हैं. सो दिस इज आल्सो फॉल्स. इफ द सिस्टम इज ओपन वन, इट शुड बी नॉन रिवर्सिबल, है ना. ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, अगर ओपन है तो नॉन रिवर्सिबल होगा. ओके, सो आंसर शुड बी ए. द सिस्टम शुड बी क्लोज एंड द प्रोसेस शुड बी नॉन फ्लो प्रोसेस. इज दिस क्लियर? यस, आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ टेस्ट ऑफ अ वाटर जैकेटेड कंप्रेसर, द वर्क रिक्वायर्ड इज 90 kilonewton मीटर पर kg of air compressed.
ठीक है, वाटर जैकेटेड कंप्रेसर वी आर हैविंग, ठीक है, सो दिस इज अ वाटर जैकेटेड कंप्रेसर। नाउ क्या बोल रहे हैं, द वर्क रिक्वायर्ड, obviously we will have to do certain work on this. How much work is required? 90 kilonewton meter, that means kilojoule per kg. This much work is required of the air compressed. Work required is this much of the air per kg of air compressed. ठीक है, during compression increase in enthalpy, that means delta H during compression, this is given as how much, 30 kilojoule per kg. ठीक है, work done, this much work is required by the compressor, so this should be negative. work done on the system होगा तो वो negative होगा. and increase in enthalpy of the circulating water, है ना, तो दो तरह की enthalpy change दिया हुआ है. एक तो दे रहा है आपका the change in enthalpy of the air, है ना, एक तो है आपका delta H of air और दूसरा है आपका delta H of circulating water. जो आपके water circulate हो रही है उसकी भी enthalpy change होगी. ठीक है, ये कितनी है, दिस इज हाउ मच, 40 किलोजूल पर केजी. यस, द चेंज इन वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो गया. द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द कंप्रेसर पर केजी ऑफ द एयर इज, ठीक है, तो टोटल हीट लॉस्ट आपकी कितनी होगी, दिस यू हैव टू डिटरमाइन. क्लियर और नॉट? यस, सिंपल चीज है. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ. द ओनली डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पर एंथैल्पी दो पार्ट में दिया है ना, मतलब जो एक तो एंथैल्पी आपकी जो एयर आ रही है यहाँ पर, एयर जो इनसाइड आउट यहाँ से अंदर आ रही है, यहाँ से बाहर जा रही है, एक तो एंथैल्पी इसकी इंक्रीज हो रही है बिकॉज वर्क इज डन ऑन द एयर, ठीक है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो एक तो एंथैल्पी एयर की इंक्रीज हो रही है. अब वो एयर क्या करेगी, दैट एयर विल ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द वाटर विच इज सर्कुलेटिंग अराउंड. तो वाटर जो घूम रहा है आजू बाजू उसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगी तो उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी ना. उसके अलावा कुछ हीट लॉस भी हो रही है, तो वो हीट लॉस कितनी हो रही है वो तो हमको निकालना है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो ओनली डिफरेंसेस कि अभी तक हम सिर्फ एंथैल्पी एक ही लेते थे जो कि एयर की लेते थे, यहाँ वाटर भी है तो आपको वाटर की भी लेना पड़ेगा. डेट से इज इट क्लियर? ठीक है, तो जस्ट पुट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. क्या बोलता है, क्या होगा, टोटल Q इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ एयर, यस, प्लस delta H of water, okay, plus W. yes, ठीक है ना. में से कि ये सर कैसा आया, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने क्या देखा है, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000, ओके, प्लस Z1 G बाय 1000 प्लस Q इज इक्वल टू S2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस Z2 G बाय 1000 प्लस W, है ना. ये इक्वेशन देखा हमने. अब ये क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर दिए, इतना बढ़ गया, बचा क्या, Q इज इक्वल टू S2 माइनस H1 विच इज डेल्टा H प्लस W, है ना. तो यही लिखा है, डेल्टा H को हमने दो पार्ट में कर दिया, एक एयर का और एक वाटर का. देखते हैं, इज दिस क्लियर? जस्ट पुट द वैल्यूज, सिंपल. तो क्या मिल जाएगा आपको, Q टोटल हीट लॉस्ट, Q इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ एयर इज गिवन एज 30, डेल्टा H ऑफ वाटर इज गिवन एज 40, ओके, और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 90 किलोजूल. Okay, so this will be equal to Q is equal to 70 minus 90, which is minus 20 kilojoule per kg. Answer. Okay, so answer should be minus 20 kilojoule per kg. ठीक है, माइनस साइन अगेन क्या शो कर रहा है कि हीट लूज हो रही है ना, और इसने ऑलरेडी बोल दिया है हाउ मच हीट इज लॉस्ट. इसने लॉस्ट है वो बोल ही दिया है. माइनस साइन सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि हीट लूज हो रही है, हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. यस, और कितनी हीट लॉस हो रही है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू सी द मैग्नीट्यूड विच इज हाउ मच, 20 किलोजूल. आंसर शुड बी ए. इज दिस क्लियर? यस, ठीक है, आगे बढ़ो. सिमिलर क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, ये 3 से 4 बार पूछ लिया. एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली इन ए स्टेडी फ्लो प्रोसेस. स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन बाय द प्रोसेस by the system will be, or in the process will be, work done in a steady flow process is what, minus integration of VdP. okay, so answer should be C, minus integration of VdP. ठीक है, वर्क डन इन द प्रोसेस. देखो दो अलग अलग चीज होती है ना. एक तो अगर वो बोल देता कि हाउ मच वर्क इज ट्रांसफर्ड, कितना वर्क ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती, तो माइनस साइन की जरूरत नहीं पड़ती, तब आपका आंसर ये होता. ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है हाउ मच work is done in the process. work done
इट कैन बी पॉजिटिव वर्क, इट कैन बी नेगेटिव वर्क डन कैन बी बाय द सिस्टम और इट कैन बी ऑन द सिस्टम। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी है। वर्क ट्रांसफर में अगर बोलता है तो मतलब सिस्टम कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी उसने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड चाहिए उसको, है ना। बट ये बोल रहा है वर्क डन, तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, सो यू नीड टू मेंशन द साइन एज वेल। तो यहाँ पर आपका साइन भी मायने रखेगा, सो इट शुड बी माइनस ऑफ वीडीपी एंड नॉट जस्ट वीडीपी। So don't get confused here. Clear or not? ठीक है, आगे बढ़ो। Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code below. ठीक है, सबसे पहला बोल रहा है constant volume process. Okay, now constant volume process में क्या होता है? When volume is equal to constant, okay, obviously आपका जो टोटल हीट ट्रांसफर रहेगी Q की वैल्यू निकालना है। दिस हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट डेल यू, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका हीट ट्रांसफर कितना होता है, mCv del T, एंड mCv del T इज नथिंग बट del U, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q इज इक्वल टू del U होता है फॉर व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली जब आपकी प्रेशर कांस्टेंट होता है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आपका जो Q होता है दैट इज नथिंग बट डेल्टा H, है ना, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है। ओके, this is everything, this all we all know। तो ये आपका A का हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मींस 2, B का हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी व्हिच इज 3। ठीक है, आगे बढ़ो। C नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में आपका जो हीट ट्रांसफर होता है Q इज इक्वल टू del U प्लस W। ओके, और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो del U तो आपका 0 हो जाएगा, दैट मींस Q इज इक्वल टू W। दैट मींस हीट ट्रांसफर किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि C का हो गया आपका 4। ठीक है, और लास्ट इज D में क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एंट्रोपी। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस में, ओके, व्हेन एंट्रोपी इज कांस्टेंट, ओके, एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब यू कैन कंसीडर इट एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज एसिम्प्टोटिक प्रोसेस। तो एंट्रोपी कांस्टेंट है, एडियाबैटिक है, तो Q इज इक्वल टू 0, सो हीट ट्रांसफर शुड बी 0, दैट मींस इट शुड बी 1। यस, okay, so answer should be 2 3 4 1, 2 3 4 1, देखो आंसर should be B, 2 3 4 1। I hope this is clear। yes, ठीक है, आगे बढ़ो। In a reversible isothermal expansion process, the fluid expands from 10 bar and 2 meter cube to 2 bar and 10 meter cube। okay, during the process the heat supplied at the rate of 100 kilowatt, what is the rate of work done during the process? Isothermal expansion process बोल दिया, okay, and isothermal expansion process बोल रहा है, इसका मतलब the process is what, isothermal process। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका क्या होता है, सिंस Q इज इक्वल टू del U प्लस W फ्रॉम फर्स्ट लॉ, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस है, so this del U will be equal to 0, that means Q should be equal to W। ओके, तो क्या दिया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट सप्लाइड दे दिया है कितनी, 100 किलोवाट। ओके, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ओके, तो आपका Q तो दे दिया 100 किलोवाट, तो आपका W भी कितना हो जाएगा, इट शुड ऑलवेज आल्सो बी 100 किलोवाट, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है कि 10 मीटर 10 बार 2 मीटर क्यूब से 2 बार 10 मीटर क्यूब तक हो रहा है। ओके, उसका कोई मतलब नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, देन हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन उसने ऑलरेडी दिया है, सो हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू 100 किलोवाट। होप दिस क्लियर, सिंपल है। ओके, आंसर शुड बी डी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज सिस्टम undergoes a process during which 150 kilojoule of heat is added to it। okay, 150 kilojoule of heat is added to the closed system, it means plus 150 kilojoule Q। the system is then restored to its initial state। okay, that means Q12 बोल दो इसको, 1 to 2 में 150 किलोजूल हो रहा है, then system is restored to initial state if the heat transfer and work transfer for the second process is minus 50 kilojoule and 75 किलोजूल रिस्पेक्टिवली, है ना। तो मतलब इसको आप ऐसे समझो, दिस इज अ साइकिल गिवन। ठीक है, ये साइकिल की बात कर रहा है। ओके, और साइकिल में आपका पहली प्रोसेस हुई 1 2, और दूसरी प्रोसेस इसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विच इज 2 1। ठीक है, तो 1 2 के दौरान में क्या दे दिया है आपको, 1 2 के दौरान आपको हीट ट्रांसफर दे दिया है, दिस मच हीट इज एडेड। ठीक है, देन रिवर्स जब कर रहे हैं तो क्या क्या दिया है, वह the heat transfer and work done respectively, that means Q21 is given as minus 50 kilojoule
ठीक है, एंड W21 वर्क ट्रांसफर भी दे दिया है विच इज हाउ मच प्लस 75 किलो जूल। ठीक है, व्हाट इज वर्क ट्रांसफर इन द फर्स्ट प्रोसेस, यानी कि W12 की वैल्यू हमको निकालनी है, वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस। getting this? Now just apply first law for closed system. Okay, sorry, first law for cyclic process. First law for cyclic process क्या बोलता है, summation of q cycle should be equal to summation of w cycle. Okay, or you can say q12 plus q21, this should be equal to w12 plus w21. ठीक है, टोटल जो हीट्स का समेशन है एल्जेब्रिक सम और वर्क का एल्जेब्रिक सम है, that should be equal. First law for cyclic process. Yes, just put the values. Simple है. So Q12 is given as how much? 150. Q21 is given as minus 50. Okay. This is 150 minus 50. This should be equal to W12, which we have to determine. W12 तो निकालना ही है हमको. W21 is how much? 75 plus 75. Clear? ठीक है. So from here you will get the value of this W12. Okay. This is how much? 150 minus 50 is 100, 100 minus 75 is 25. So this should be equal to 25 kilojoule. Answer is 25 kilojoule A. Clear? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, देखो, ड्यूरिंग अ साइकिल कंप्राइजिंग 4 प्रोसेसेस द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग 3 प्रोसेसेस आर, क्या क्या हीट ट्रांसफर दिया है, 45 प्लस 45 माइनस 30 किलो जूल एंड माइनस 25 किलो जूल। व्हाट शुड बी द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द फोर्थ प्रोसेस सो दैट द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज गिवन। ठीक है, अगेन सेम चीज, समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, समेशन ऑफ क्यू साइकिल शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू साइकिल, या फिर डब्ल्यू नेट बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेसेस है, कितनी कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, प्लस 45 माइनस 30 minus 25, okay, plus Q4 बोल दो, which we want to determine. This should be equal to total net work transfer कितना होना चाहिए, so that the net work done during the cycle is 0. Total net work transfer is 0. Yes, okay. So from here you can determine the value of this Q4. तो Q4 कितना हो जाएगा, 45 minus 25 is 25. Okay, 25. This is ये कितना हुआ, 45 minus 30 is 15. 15 minus 25 is minus 10. minus 10 इधर आके कितना हो गया, plus 10 किलो जूल. That's it. Okay, answer should be B, which is plus 10 किलो जूल. Clear? Yes, simple है questions. ठीक है, आगे बढ़ जाओ. Again, similar question, simple question. A system undergoes a change of state during which 100 kilojoule of heat is transferred to it and it does 50 kilojoule of work. ठीक है, और फिर से उसको ब्रॉड बैक किया जा रहा है, यानी कि आपको क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले Q12 दिया है, which is how much 100 kilojoule heat is transferred to it, यानी कि प्लस 100 kilojoule. ठीक है, and the system is doing 50 kilojoule of work. W12 is 50 kilojoule plus 50 kilojoule. ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, इसलिए Q भी पॉजिटिव है, W भी पॉजिटिव है. द सिस्टम इज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट थ्रू अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच, ठीक है, क्या दिया है, 120 किलोजूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट, यानी कि Q21 दे दिया है. साइक्लिक प्रोसेस में वापस से हम उसको रिपीट कर रहे हैं, सेम चीज जैसा अभी हमने देखा, 1 to 2, देन उसके बाद वापस उसको 2 से 1 लाया जा रहा है, एंड ड्यूरिंग दिस 2-1 प्रोसेस Q21 is given as how much, 120 kilojoule transfer to it. What is the work done by the system? W21 की वैल्यू हमको निकालनी है. ठीक है, अगेन जस्ट अप्लाई फर्स्ट लॉ फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. तो फर्स्ट लॉ फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या बोलता है, समेशन ऑफ क्यू साइकिल शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू साइकिल. ठीक है, समेशन ऑफ क्यू साइकिल इज 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 50. W cycle is 50 plus W21. Just determine the value of W21 from here. Okay, so this will be 100 minus 50 is 50. 50 plus 120 is 170 kilojoule. Okay, answer should be 170 kilojoule. B. Clear? ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन.
गुड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अ बैटरी इज यूज्ड टू लाइट अ बल्ब, रन अ फैन एंड हीट एन इलेक्ट्रिक आयरन। तीन डिवाइस यूज कर रहे हैं हम with the help of battery. We are powering three different devices: a bulb, a fan and an electric iron in case of power failure. ठीक है, ऑब्वियसली कोई ऐसा यूज नहीं करेगा, जब पावर फेल होगा तभी हम बैटरी से यूज करते हैं. इफ ईच ऑफ द अबव सिस्टम हैज 100 watt रेटिंग एंड इज रन फॉर 15 minutes, what are the work done and heat transferred by the battery? ठीक है, तीनों सिस्टम की, हर एक सिस्टम की रेटिंग कितनी है? 100 watt है. ठीक है, जितने भी, दैट मीन्स बल्ब की रेटिंग भी 100 watt है, फैन की रेटिंग भी 100 watt है, और इलेक्ट्रिक आयरन की भी रेटिंग कितनी है? 100 watt है. और कितने देर तक वर्क कर रहा है? फॉर 15 minutes. वी वांट टू डिटरमाइन द टोटल हीट ट्रांसफर, सॉरी टोटल वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर. गेटिंग दिस क्वेश्चन क्लियर है? यस, ठीक है. एक बार फिर से समझ लो, वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट डिवाइसेस. एक लाइट बल्ब है, एक फैन है और एक इलेक्ट्रिक आयरन है. ओके, सो वी आर हैविंग अ लाइट बल्ब, ठीक है, अ फैन एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर. यस, ठीक है. इनकी रेटिंग्स कितनी गिवन है? 100 watt ईच, मतलब हर एक की रेटिंग कितनी है? 100 watt. तो टोटल पावर कंज्यूम कितना करेगा एक डिवाइस? एक डिवाइस कितनी पावर कंज्यूम करेगी? पावर कंज्यूम बाय वन डिवाइस 100 watt की रेटिंग है. watt मीन्स किलो जूल पर सेकेंड. ओके, दिस मच किलो जूल पर सेकेंड इंटू टाइम कर दो. कितने टाइम तक रन कर रहा है? 15 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स. टोटल इतने सेकेंड्स हो गए. इज क्लियर? यानी कि कितना हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू 15 6 90. तो ये हो गया आपका 9, और कितने जीरो आ गए? 3 zeros. नॉट जूल, किलो जूल, दिस इज जूल है ना, ये आपका जूल है, किलो जूल नहीं है, जूल पर सेकेंड. ठीक है, सो दिस मच जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, और यू कैन से पावर इज इक्वल टू 90,000, सॉरी 90, दिस इज 90 के बाद 3 जीरो, 90,000 वॉट है ना, या फिर 90 किलो वॉट बोल सकते हो आप इसको. ओके, दिस इज पावर कंज्यूम बाय वन डिवाइस. एक डिवाइस की पावर कंजम्पशन है. ठीक है, तीन डिवाइसेस हैं, तो टोटल पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल पावर कंज्यूम which is equal to 90 into 3 which is equal to 270 kilowatt. Yes, ठीक है. So this much work is done on the system. इतना क्या हो रहा है? इतना वर्क हम सिस्टम पे कर रहे हैं, इतना वर्क कंज्यूम कर रहा है सिस्टम. तीनों डिवाइसेस मिलके इतना वर्क कंज्यूम कर रहा है ना. और ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर जो होगी वो जीरो. हीट ट्रांसफर की कोई और इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है. हीट ट्रांसफर, हीट लॉस भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. सो दैट मीन्स द हीट ट्रांसफर शुड बी जीरो एंड वर्क डन शुड बी 270 किलो जूल. ओके, आंसर शुड बी सी. इज इट क्लियर? यस, ठीक है, आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस 6000 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम. ठीक है, इन अ नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस बाय विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. अगेन साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा है. 1000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम. व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस? ठीक है, तो इनिशियली एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी आपका Q12 तो जीरो होगा. एडियाबैटिक है, हीट ट्रांसफर इज जीरो. वर्क ट्रांसफर बोल रहा है, W12 कितना है? परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम, यानी कि -6000 किलो जूल, नॉट किलो जूल, सॉरी, -6000 जूल. ठीक है, इन नॉन एडियाबैटिक जो प्रोसेस रिटर्न हो रही है, तो उसमें आपका Q21 जो है ओरिजिनल स्टेट, 1000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, है ना. 1000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, यानी कि पॉजिटिव होगा. यस, व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग दिस नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस? W21 की वैल्यू आपको निकालनी है. दैट्स इट. ठीक है, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो इसमें, बाकी कोई बहुत खास चीज नहीं है. ठीक है, सेम चीज, समेशन ऑफ Q साइकिल इज इक्वल टू समेशन ऑफ W साइकिल कर दो. फर्स्ट लॉ फॉर साइक्लिक प्रोसेस, समेशन ऑफ Q साइकिल should be equal to summation of W cycle. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 0 + 1000 is equal to -6000 plus W21. Okay, so from here this W21 will be equal to 6000 plus 1000 is how much? 7000 joule. Okay, so W21 should be equal to 7000. Answer clear? Answer should be plus 7000 joule.
क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a system executes a cycle during which 4 different processes are given, ठीक, Q12, Q23, Q31, Q41, वर्क डन 3 प्रोसेसेस में दिया है, 4th प्रोसेस में हमको वर्क डन निकालना है। अगेन फर्स्ट लॉ फॉर साइक्लिक प्रोसेस, समेशन ऑफ Q साइकिल should be equal to summation of W cycle। क्या क्या गिवन है? Q12 is given as 220, Q23 is given as minus 25, okay, Q34 is minus 180 plus 50, Q41, this should be equal to वर्क डन कितना कितना है? 15 minus 10 60, 15 minus 10 60 plus W41 जो कि निकालना है, ठीक है। जस्ट डिटरमाइन द वैल्यू। 220 minus 180 is 40, okay, 40 plus 50 is 90, 90 minus 25 is 65, ये हो गया आपका 65, ओके। और ये कितना हो जाएगा आपका? 60 minus 10 is 50, 50 plus 15 is again 65 plus W41, ओके। तो यहाँ से this W41 will be equal to 0, answer clear, okay, answer should be 0 kilojoule, getting this, okay। आगे बढ़े। Identify the process of change of a closed system in which work transfer is maximum। वर्क ट्रांसफर मैक्सिमम आपको किस में मिलेगा, ओके ना। एक और क्वेश्चन इसमें हमने देखा था, आपने देखा होगा, जिसमें एक्सपेंशन रेशियो आपके सेम थे। तो एक्सपेंशन रेशियो सेम थे तब तो हम देख सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस में हमारा मैक्सिमम वर्क मिलता है, जिसमें एरिया अंडर पीवी डायग्राम मैक्सिमम मिलता है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर में मिल रहा था। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। ये सिंपली बोल रहा है कि इन चारों प्रोसेसेस में आपको मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर किस में मिल सकता है, किसमें मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेसेस है? एक तो है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, दूसरी है आपकी आइसोकोरिक, तीसरी है आइसेंट्रोपिक एंड फोर्थ इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है ना। एक ही प्रोसेस इसमें हमको ऐसी दिख रही है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, विच इज नथिंग बट द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। बाकी सारी प्रोसेसेस जो है डेट मे बी रिवर्सिबल, डेट मे नॉट बी रिवर्सिबल। वर्क जो है हमको मैक्सिमम किसमें मिलेगा? इट कैन बी इन द रिवर्सिबल प्रोसेसेस ओनली। नाउ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस is nothing but the reversible adiabatic process. This is reversible adiabatic process. So the most appropriate option according to this particular question should be C, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिसमें एक तो आपका रिवर्सिबल है प्रोसेस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग एडियाबैटिक है, यानी कि हीट ट्रांसफर भी आपका जीरो हो गया, करेंगे। तो इसलिए आपको वर्क ट्रांसफर जो है, वर्क डन जो है, वो आपको मैक्सिमम मिलेगा किसमें? इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ओके। सो आंसर शुड बी सी। मैक्सिमम जो एफिशिएंट प्रोसेस रहेगी, रिवर्सिबल भी है और प्लस हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, हीट लॉस भी नहीं हो रहा है। सो आंसर शुड बी सी। इज क्लियर? यस, ठीक है, आगे बढ़ो। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लोज सिस्टम व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जब हो रही है तब क्या होगा? फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी जीरो हो जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो है, यानी कि Q शुड बी इक्वल टू W, ठीक है। तो क्या होगा? व्हेन हीट ट्रांसफर इज जीरो, नॉट नेसेसरली चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन वर्क ट्रांसफर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वर्क ट्रांसफर जीरो, ये भी गलत है। हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, दिस इज करेक्ट, ओके। आंसर शुड बी डी, द हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ प्रोसेस with heat and work interaction the internal energy of the system increases by 30 किलोजूल। del U दे दिया है 30 किलोजूल, ठीक है। the amount of heat and work interaction are respectively, तो Q is equal to क्या होता है? Q should be equal to del U plus W, ओके। यानी कि आपका del U should be equal to Q minus W। Q minus W की वैल्यू दे दी आपको कितनी? 30 किलोजूल, ओके। तो Q minus W आप चेक कर लो बस, दैट्स इट। इसमें क्या हो रहा है आपका? Q minus W अगर आप करेंगे, ओके, दिस विल बी 30 किलोजूल, ठीक है, ये सही है। अमाउंट ऑफ हीट एंड वर्क, पहला वाला हीट है, दूसरा वाला आपका वर्क है ना। एंड इट शुड बी प्लस 30 एंड नॉट माइनस 30, है ना, इस चीज़ का भी ध्यान देना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? दिस इज Q माइनस
ये कितना था -50 -80, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया है ना। इसमें आप करेंगे तो कितना हो जाएगा -50 -80 विच इज -130 है ना। इसमें आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 -80 विच इज -30 है ना। और इसमें कितना हो जाएगा 50 + 80 विच इज 130। ओके, सो आंसर शुड बी ए। ओके, सिंपली एलिमिनेशन मेथड। इज क्लियर? ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, the heat transferred in a thermodynamic cycle of a system consisting of 4 processes are successively 0, 8, 6 and -4 unit. heat transfer 4 different process की दे दिया है। the net internal energy change of the system will be, है ना। 4 प्रोसेसेस की हीट ट्रांसफर दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। अल्टीमेटली वो साइक्लिक प्रोसेस है ना। 4 थर्मोडायनेमिक साइकिल, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में आपकी जितनी भी प्रोसेसेस रहे, अल्टीमेटली जितने भी पॉइंट फंक्शंस हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज है, वेदर इट बी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना, इंटरनल एनर्जी, जितने भी आपके पॉइंट फंक्शंस है, उन सब का जो टोटल चेंज होगा डेट विल बी 0। ओके, आंसर शुड बी बी, because internal energy is the point function and the property of the system. So the change in internal energy in a complete cycle की बात हो रही है, change in internal energy will be 0. Okay, answer should be B. क्लियर नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A system undergoes a changes of state during which 80 kilojoule of heat is transferred to it and it does 60 kilojoule of work, है ना। 80 kilojoule of heat is transferred to it, यानी कि +80, and system is doing 60 kilojoule of work +60। ठीक है, द सिस्टम इज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगेन ओरिजिनल स्टेट की बात कर रहा है, तो ये हो गया आपको, लेट्स सपोज 1 2 हो गया, दिस इज 1 2। द सिस्टम इज ब्रॉट बैक टू ओरिजिनल स्टेट थ्रू द प्रोसेस ड्यूरिंग विच 100 किलोजूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू इट, यानी कि Q21 दे दिया आपको कितना, 100 किलोजूल, अगेन पॉजिटिव क्योंकि हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम है। द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी W21 आपको निकालना है, करेंगे। ठीक है, सेम चीज, समेशन ऑफ Q साइकिल फर्स्ट ऑफ और साइक्लिक प्रोसेस should be equal to summation of W cycle। ओके, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 80 + 60, दिस शुड बी इक्वल टू, सॉरी नॉट 80 + 60, 80 Q12 + Q21 ना, 80 + 100, 80 + 100, दिस शुड बी इक्वल टू 60 + W21। ओके, सो फ्रॉम हियर W21 कितना हो जाएगा, देखो, दिस विल बी 180 - 60 is 120 kilojoule. That's it. Answer should be C, which is 120 kilojoule. Clear? Okay, so this completes this particular chapter, first of thermodynamics। इसमें हमने इसरो के भी क्वेश्चंस करे हैं और दूसरे भी क्वेश्चंस करे हैं, स्पेशली CSE के जो सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी हमने इसमें किए। Okay, so I hope this particular series is helping you a lot and you can download the application to solve more such questions। बहुत सारे और भी दूसरे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, so you can download the application GATE lectures from mechanical from Play Store now। So that's it for today, thank you so much, जय हिंद, all the best।